حضرات اسلام السلام علیکم۔ میں بھی فانی، تو بھی فانی، سب ہیں فانی بہر میں، مگر قیامت برپا ہے مرگ جوانی بہر میں۔ چلو چلی کا یہ مقام ہے، کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے جاری و ساری ہے، اور تا دم صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ نہ جانے کتنے ہی مرحومین کو ہم اپنے ہاتھوں سے نہلا چکے ہیں، دفنا چکے ہیں، دفنا چکے ہیں، قبروں میں اتار چکے ہیں۔ نہ جانے کتنے ہی پیاروں کے جنازے ہم کندھوں پہ اٹھا کے یہاں تک لائے ہیں، اور ابھی جب تک آپ کے دم میں دم ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا، رکنے والا نہیں۔ یہ جنازہ ہمیں سبق بھی یہی دیتا ہے کہ لوگوں جس طرح تم مجھے آج کندھوں پہ اٹھا کے لا رہے ہو، ایسے ہی اب تم نے میرے پیچھے آنا ہے، تمہارے ساتھ بھی یہی احوال و آثار ہوں گے، یہی کیفیات ہوں گی، تمہیں بھی ایک دن پٹے کے اوپر تختے کے اوپر لیٹنا پڑے گا، اور جتنی بھی طاقت تم رکھتے ہو نا اپنے بازوؤں میں، ہاتھ اٹھاتے ہو تو لوگ ڈر جاتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہو تو لوگ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تمہاری گرجدار آواز سے لوگوں کے جسموں پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، تمہارے دروازے پر آنے والے لوگ کتنے ہیں جن کو تم دھتکار دیتے ہو، اسی دروازے سے تمہیں بے یارو مددگار، تم نہ اٹھ سکو گے، نہ بول سکو گے، تمہارا ہاتھ بھی جنبش نہیں کر سکے گا، تمہاری زبان بھی جنبش نہیں کر سکے گی، یہ ہونٹ بولنے کے قابل نہیں رہیں گے، تم حرکات و سکنات سے بالکل منجمد جسم تمہارا ہو جائے گا، ساکن ہو جائے گا۔ جس گھر کو تم نے بڑی تسلی سے، بڑے ذوق اور شوق سے سجایا اور بنایا، اس گھر سے تمہاری میت روانہ ہوگی، اور جس دروازے پر تم کسی کو پھٹکنے تک نہیں دیتے تھے اس دروازے سے تمہیں نکال دیا جائے گا، اور پھر کندھوں پر اسی طرح سوار ہو کر جس طرح مجھے آج جنازگاہ میں چھوڑنے آئے ہو، ایسے تم بھی میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ یہ مقام عبرت ہے۔ اس بچی کی وفات اور چند دن پہلے محترم راؤ محمد افضل رضوی سیفی صاحب، راؤ تسلیم اختر صاحب حاجی کے صاحبزادے، ان کے چھوٹے بھائی راؤ مکرم علی شہید، ان کی شہادت، ان کا وصال اور ان کا خالقے کے حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ چیزیں ہمیں ایک سبق چھوڑ کے جا رہی ہیں، یہ چیزیں ہمیں سبق چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہم نے وہ سبق لے لیا؟ وہ سبق ہم نے سیکھ لیا؟ اگر وہ سبق نہیں سیکھا تو اس سبق کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم اس انتظار میں ہیں 80 سال 85 سال ہماری عمر ہوگی، بوڑھے ہوں گے اور ہاسپٹل کے بستر پر پڑے ہوں گے، فالج جسم کو لگے گا، یا شوگر کی مرض ہمارے اوپر آئے گی، یا ہمیں کوئی اور مرض جو قریب المرض کر دے، ایسی مرض کوئی لگے گی تو پھر ہی ہم دنیا سے جائیں گے؟ ایسا بالکل بھی نہیں۔ کیا ہم اس انتظار میں ہیں کہ ہماری 100 سال عمر ہو جائے گی تو پھر توبہ کریں گے؟ ابھی مسجد کے اندر سے آواز آتی ہے، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، لوگوں آ جاؤ کامیابی کی طرف، کامیابی ادھر ہے۔ تم جدھر بھاگ رہے ہو، تاش کھیل رہے ہو، جوا کھیل رہے ہو، تم دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ نماز کو قضا کر کے ان کے ساتھ کھیل کود میں مگن ہو، مصروف و مشغول ہو۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، یہ بندہ فقیر قسم کھا کے کہتا ہے
जिन दोस्तों की खातिर आप नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह के घर में नहीं आते, कुरान पाक की तिलावत नहीं करते, ये आपके दोस्त और आपके यार कभी आपकी नमाज जनाजा में भी शामिल नहीं है। मरना तो सब ने है ना, चाहे कोई वक्त का गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, वली हो, आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, मुफक्किर इस्लाम हो, मुहद्दिस आज़म हो, कोई भी हो। यहाँ तक किसी शायर ने कहा था, अब गुस्तारा छट गए खैड़ा, लम्बी छोड़ कहानी, तुर गए नबी मोहम्मद जिनकी खातिर ये कायनात मार से वजूद में आई, जिनकी खातिर अल्लाह ने आसमानों को बनाया, जमीनों को बनाया, अर्शो फर्श, लोहो कलम और कुर्सी को बनाया और पूरी कायनात को बनाया, जिनकी खातिर ये जहान रंगो बू कायम है, वो महबूब इस दुनिया में नहीं रहे, तो हम कौन सा यहाँ पक्के डेरे लगाए हुए हैं? हमारे को पक्के डेरे, किसकी क्या जरूरत है को पक्का डेरा लगाए? तो फिर हम वो मामला जिससे कोई बंदा बच ही नहीं सकता, उस मामले के लिए हम तैयारी क्यों नहीं करते? वो मामला क्या है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत का जायका, हर एक ने फना हो जाना है, हर एक ने दुनिया से चले जाना है, मौत का जायका चखना है, लेकिन उनकी मौत काबिल रश्क होती है जिनके सीनों में मोहब्बत रसूल होती है, जिनके दिलों में इश्क़ रसूल होता है, जो ईमान को सलामत लेके दुनिया से जाते हैं, जो जब दुनिया से जाते हैं तो आंखें इतबार होती हैं, आंखें रो रही होती हैं और लोग कह रहे होते हैं उसके जनाजे को देख करके ये बंदा बहुत अच्छा है। कामयाबी ये ईमान पर इस्तकामत, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता ताल्लुक मजबूत, आज हमें इसकी ज़रूरत है। हमें तो नमाज जनाजा की दुआएं भी नहीं आती, जनाजे में खड़े होते हैं चुप कर। खुदा के वास्ते ये हाथ बांध के आप सब दोस्तों को गुजारिश करता हूँ कि नमाज जनाजा की दुआएं याद करें, नमाज को याद करें, कलमे याद करें, ईमान की किस्सें याद करें। पूरा कुरान पाक आप नहीं पढ़ सकते, कम अज़ कम आप अलिफ लाम मीम से अलहमद से शुरू तो होना, एक एक लफ्ज़ रोज़ का पढ़ना शुरू कर दें। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह 40 साल की उम्र में एक दरख्त के नीचे खड़े थे, बारिश आ गई, नीचे एक गड़ा था, वो कतरा कतरा टपक रहा था, पत्तों से भर गया, चीख के कहते हैं, ओए सादी कितना तू बदनसीब है, ये देख बारिश का कतरा कतरा गिरा और गड़ा भर गया, तू 40 साल में एक एक लफ्ज़ भी पढ़ता तो अल्लाह तुझे कितना इल्म अता करे। हम अपनी जिंदगी को एक खेल तमाशा ना समझें, ये मकसद है कोई, ये जिंदगी मकसद है कोई, ये एग्जामिनेशन हॉल है। अल्लाह ने आपको यहाँ तैयारी के लिए भेजा है, पक्के डेरे लगाने के लिए नहीं भेजा, यहाँ तैयारी के लिए। कहाँ की तैयारी? जहाँ हम आए खड़े। और हमारा हाल ये होता है कि कब्रिस्तान में चले जाएं तो जनाजे का मौका होता है, चलो कोई नसीहत की बातें हो जाए, लेकिन हमारा दिल घबराना शुरू हो जाता है। हमें जल्दियाँ वो शुरू हो जाती हैं। मस्जिद के अंदर इमाम साहब 2 मिनट लेट हो जाएं, हमें जल्दियाँ शुरू हो जाती हैं। कहाँ जल्दी शुरू नहीं होती? खेल कूद देख रहे हो जल्दी नहीं होती, टीवी पर मैच लगा हो जल्दी नहीं होती, फिल्म देख रहे हो, ड्रामा देख रहे हो जल्दी नहीं होती, ताश खेल रहे हो जल्दी, ओ मदारी तमाशा लगा के बैठा हो, मैंने अभी सांप दिखाना है, वहां 2-2 घंटे गुजार। यही टाइम अगर आप नसीहत की बातें सुनने में आपके 2 मिनट लग गए, खुदा की कसम क़यामत के दिन काम आ जाएंगे, कब्र में काम आ जाएंगे, हश्र में काम आ जाएंगे। ये बातें इसलिए होती हैं कि दिलों पे कोई दस्तक हो जाए, किसी फकीर की, किसी अल्लाह वाले की दस्तक तुम्हारे दिल पे असर कर जाए, रब्बे काबा की कसम जिंदगी संवर जाए। अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी बदल दे। ये जिंदगी बदलने वाला है मामला। हमें नमाज जनाजा की दुआएं याद करनी चाहिए। ईमान से बताइए, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, बहुत थोड़ा मुख्तसर सा टाइम है। आप ईमान से बताइए, आज हम किसी के जनाजे में उसके खड़े होकर उसके साथ धोखा करेंगे, ये दुनिया मुकाफात अमल है या नहीं है? ये पहिया घूम रहा है ना, पहिया घूम रहा है ना, तो जो हम किसी के साथ करेंगे वो हमारे साथ होगा या नहीं? मुझे सारों से जवाब चाहिए। अगर हम किसी का भला करेंगे तो हमारे साथ भला होगा या बुरा?
और अगर किसी का बुरा करेंगे तो क्या होगा? बुरा होगा। हम जनाजे में शामिल भी हो जाएं और दुआएं फिर भी ना पढ़ें। जनाजे में शामिल भी हो जाएं, वुजू ना किया हो, जनाजे में शामिल भी हो जाएं, रब की रजा शामिल ना हो, मामला ये हो यार उनको बताना है बरादरी वाले राव साहब को अगर चेहरा ना दिखाया तो वो क्या कहेंगे, फलाना बंदा आमदीन आया ही नहीं है। नहीं, जनाजे में भी शामिल हो के हम महरूम ना रहें, बल्कि अल्लाह की रजा को सामने हाथ रखें। इनको हम मिले ना मिले, अल्लाह के दरबार में हमारी हाजिरी लग जानी चाहिए कि हम अपने मुसलमान भाई की, मुसलमान बहन की नमाज जनाजा में आए। खड़े होके नहीं चले गए, बेवुजू आके बेवुजू नहीं चले गए, बल्कि बावुजू होके आए हैं, दिल से उनके लिए दुआएं मांगी। क्या किया है? उनको किस चीज़ का फ़ायदा होना है? मरहूम को दुआओं का। ऊंची बोलो सारे, किसका फ़ायदा होना है? दुआओं का। जब कोई बंदा दुनिया से चला जाता है तो उसको हमारे रोने धोने का फ़ायदा नहीं है, हमें उसके ऊपर बैन करने का उसको फ़ायदा नहीं है। उसको फ़ायदा ये है कि हम कुरान पढ़ के उनको इसाले सवाब करें, दुआएं पढ़ के उनको इसाले सवाब करें, सदका और खैरात करके उनको इसाले सवाब करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वादा करें कब्रिस्तान में खड़े हैं, आज के बाद नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आज के बाद नमाज जनाजा की दुआएं अपने इमाम साहब से, या घर में बेटा पड़ा है, बेटी पड़ी है, बीवी पड़ी है, खामद भी उससे पढ़ सकता है, खामद पड़ा हो तो बीवी उससे पढ़ सकती है, बेटी पड़ी है तो बेटे से माँ बाप पढ़ सकते हैं, बेटी पड़ी है तो माँ बाप बेटी से भी पढ़ सकते हैं। कोई मजायका नहीं है। ये कुरान और हदीस की बातें सीखनी चाहिए। दुआ करो अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ये ज़िंदगी चलो चली का मकाम है, यहाँ सब ने चले जाना है, किसी ने बैठ नहीं रहना। कब्रिस्तान में आए, इबरत की बातें करें, फिक्र आखिरत की बातें करें, दुआएं करें। कई दोस्त जनाजे से फारग होते सिगरेट लगा लेते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक शुरू कर देते हैं। यार हमारी ज़िंदगी इतनी गाफिल हो चुकी है, कब्रिस्तान में तो आके कम अज़ कम इन चीज़ों का हया करना चाहिए ना। यहाँ पर दुआएं करनी चाहिए, दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, सारों के लिए दुआएं मांगा करो। एक के हक में भी कबूल होगी, हमारे हक में भी कबूल होगी। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, सफ़ों को सीधा